combining several low rate channels into one high rate one. In TDM, instead of sharing a portion of the bandwidth as in FDM, time is shared. Each connection occupies a portion of time in the link. In the figure, portion of the single signals 1, 2, 3, 4 occupies by the link sequentially. We can divide TDM into two different schemes, synchronous and statistical. अब ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये डिफरेंट चैनल्स हैं, तो ये मेरे पास या हम लोग जो इसको डिवाइड कर सकते हैं या सिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में हम इसको स्कीम्स में दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पर कहता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ईच सिंगल्स अपीयर्स ऑन द लाइन. ये देखें लाइन लगी हुई है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो पहले आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये आपके वर्क्स हो रहा है, राइट. पहले वर्क्स ये वाला सिस्टम 1 2 3 4, फिर उसके बाद आपने फिर सेकंड 1 2 3 4 देयर इज डाटा फ्लो. तो इस तरीके से रिसीविंग एंड पे आ रहा है. तो कहता है कि ईच सिग्नल्स अपीयर ऑन द लाइन ओनली अ फ्रैक्शंस of time in an alternating pattern. Each individual data stream is reassembled at the receiving end based on the timing. अब कहता है कि time driven multiplexing takes advantage of the fact that the achievable bit rate of the medium exceeds the required data rate of a digital signal. अब यहाँ पर मेरे पास TDM के अंदर आप क्या देखते हैं एसिंक्रोनस फॉर्मेट में. तो आप देखिए यहाँ पर तो मेरे पास इसके अंदर फ्रेम 1 में देखिए आपके पास A1 है और C1 यहाँ पर ये स्पेस है. आप सेकंड में देखिए A2 और B2 यहाँ पर स्पेस है. इसमें तीनों है आपके पास A3 B3 C3 तीनों कलर्स मौजूद हैं. तो आप देखेंगे जब फ्रेम 1 में तो A1 की स्पेस थी, फिर C1 था, ठीक है जी. फिर फ्रेम 2 के अंदर A2 फिर B2 फिर तीसरी स्पेस है. फिर फ्रेम 3 में आप देखेंगे तीनों कलर्स हैं. तो यहाँ पर आप उसको फ्रेम्स में डिवाइड करके आप उसको आगे ट्रांसमिट कर रहे हो ऑन अ सिंगल चैनल के ऊपर, ठीक है जी. अब उसके बाद आप देखते हैं टाइम स्लॉट्स एंड फ्रेम्स इन सिंक्रोनस TDM. द डाटा फ्लो of each input connection is divided into units, where each unit occupies one input time slot. A frame consists of one complete cycle of a time slots with one slot dedicated to each sending device. The duration of an output time slot is n times shorter than the duration of an input time slot. If an input time slot is t as time seconds के अंदर, the output time slot is t by n seconds. ये आपके पास ये आएगा टाइम पर n seconds के अंदर, आप उसको देख रहे हो. तो आपके पास इसके बाद आप जब देखने के बाद एग्जांपल एक ली जा रही है, यहाँ पर कहता है there are 3 input connections, each connection data rate is 1 kilobits per second. ठीक है, if one bit is at a time is multiplexed, what is the duration of each input slot, each output slot, each multiplexing frame. तो आप यहाँ पे इसको देखें तो मेरे पास कहता है कि the data rate of each connection is 1 kilobits per second. This means that the bit duration is 1 by 1000 seconds or 1 milliseconds. The duration of the input time slot is 1 milliseconds, same as the bit duration. तो आपके पास that's आपके पास input slot के लिए. अब जब output slot के कह रहे हैं that's 1 by 3, ठीक है, milliseconds के अंदर. तो जब आप उसकी बात कर रहे हो मल्टीप्लाई फ्रेम पे, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 1 by 3 milliseconds और 1 millisecond, वो आपका आंसर आ जाएगा. द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेम इज द सेम ड्यूरेशन ऑफ द इनपुट से. तो इसका दोनों का ए और सी का आंसर सेम होगा. तो इस तरह ही इसके अंदर इसने एक्सप्लेन किया हुआ है. अब मेरे पास जो फ्रेम्स बनाए हैं इसके अंदर, आपके पास A1 B1 C1, सेकेंड फ्रेम A2 B2 C2, उसके बाद थर्ड फ्रेम A3 B3 C3. तो जब इसने कहा यूनिट can be one bit, one character, one block of data, each input unit becomes one output unit and occupies one output time slot. However, the duration of an out time slot is n times shorter than the duration of the input time slot. If an input time slot is t seconds, the output time slot is t by n seconds, where n is the number of the connections. This implies that a unit is in the output connection has a shorter duration. It travels faster. The data rate of the link is n times faster and the unit duration is n times shorter. अब देखिए इस तरह t by 3
टोटल इसका टी है, आप टाइम का इसका टाइम तो इसका टी/3 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 टोटल हो जाएगा टी, तो दिस इज फॉर द फ्रेम 1। तो इस तरह फ्रेम 2 का, इस तरह फ्रेम 3 के साथ, तो आप इसको कह सकते हैं कि टोटल मेरे पास 3 देखिए आपके टाइम लगा 3 टाइम स्लॉट्स आपकी यूज हुई, तो आपके पास एक का कितना यूज होगा, एक सिंगल एक टाइम स्लॉट का 3/3 सेकंड्स। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इंटरलिविंग, ठीक है जी। अब इस तरीके से फ्रेम्स में जब आप आए हैं, आपने देखा फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3, तो सबसे पहले आप उस तरह ही आपके पास फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 आपको, तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन पोर्शन, दरम्यान में जो हो रहा है, दरम्यान में जो प्रोसेसिंग हुई है इसके अंदर। कहता है इंटरलिविंग में टीडीएम कैन बी विजुअलाइज्ड as two fast rotating switches, one on the multiplexing side and the other on the demultiplexing side. The switches are synchronized and rotate at the same speed, but in opposite direction. Multiplex and demultiplexers are a terminal host unit in turns. One on the multiplexing side, as a switch opens in front of a connection, that connection has the opportunity to send a unit onto that onto the path. This process इसको क्या कहते हैं, इंटरलिविंग, ठीक है जी। अब इंटरलिविंग के बाद आप जब देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब इसमें यहाँ पर इंटरलिविंग में कैरेक्टर बाइट इंटरलिविंग, मल्टीप्लेक्सिंग प्रेफर वन और मोर कैरेक्टर्स और बाइट्स एट अ टाइम. Bit interleaving, multiplexing performs one bit at a time, one bit per unit. Empty slots, synchronous या empty slots दरम्यान में नजर आएंगे आपको. Synchronous TDM is not efficient as it could be. If a source does not have data to send, the corresponding slot in the output frame is empty. अब ये दरम्यान में आपको empty नजर आ रही होगी. आपके पास यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर्स आपको, एक स्पेस आपने दी है, ग्रीन स्पेस, येलो, फिर पिंक. तो ये स्पेसिंग आपके सामने आ रहा है. जहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर 2 स्पेसिंग है, फिर और ग्रीन और पिंक के दरमियान में आपके पास टाइम मिक्स हो रहा है. फिर यहाँ पर एग्जांपल है, कहता है क्या जी, 4 चैनल्स आर मल्टीप्लेक्स using TDM. If each channel sends 100 bytes per second and we multiplex 1 byte per channel, show the frame traveling on the length, the size of the frame, the duration of the frame, and the frame rate and the bit rate of that length. अब इसका करना क्या चाहिए आपने, अब इसके फ्रेम से निकालें. आपको पता है कि ये मेरे पास टोटल मेरे पास कितने, उसने 100 बाइट्स का कहा है, तो उसने कहा जी ईच फ्रेम कैरीज 1 बाइट. बिल्कुल ठीक है. ऑफ द चैनल द साइज ऑफ ईच फ्रेम इज 4 बाइट्स, तो हो जाएगा 32 बिट्स. ठीक है जी. तो हम लोग का टोटल 100 है, 100 मेरे पास क्या देगा, मेरे पास उसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद 32, तो कितना देगा 32 100 बिट्स पर सेकंड. तो इसका मतलब ये 32 ये आपके पास फ्रेम 4 बाइट्स है 32 बिट्स का, ये भी फ्रेम ऑफ 4 बाय 32 बिट्स का. टोटल इसका कितना देगा फ्रेम के ड्यूरेशन आपके पास 32 बिट्स पर सेकंड. तो आपके पास फ्रेम ड्यूरेशन कितने देगी 1/100 सेकंड्स के हिसाब से. तो आपके पास इस तरह करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. अब उसने कहा मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस 400 किलो बिट्स पर सेकंड चैनल्स यूजिंग अ time slot of 2 bits. Show the output with 4 arbitrary inputs. What is the frame rate? What is the frame duration? What is the bit rate? What is the bit duration? अब बहुत इंपॉर्टेंट है. The link carriers कितना है जी, उसने कहा जी 50,000 फ्रेम्स पर सेकंड. वो 50,000 कैसे बना आपके पास, आपके पास यहाँ पर मेरे पास बन रहा है जी टोटल मेरे पास जो लिंक है यहाँ पर मेरे पास इसके जो फ्रेम का रेट है यहाँ पर 50,000 है. इसका मतलब कि एक आपके पास ये यहाँ पर आपके पास बन रहा है मेरे पास, ये आपके पास 8 बिट्स का आपको लेके चल रहे हो आप, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8. इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास जो फ्रेम ड्यूरेशन आ रही है वो आपके पास आ रही है 1/50,000 सेकंड विच इज 20 माइक्रो सेकंड्स. आप जब कहते हो कि इसके अंदर 50,000 फ्रेम्स हैं, तो मेरे पास 50,000 फ्रेम्स का आप मेरे पास यूज करते हो, तो आपके पास टोटल कितना होगा 100 किलोबिट्स पर सेकंड. आप वो कैसे, क्योंकि 100 100 100 100 तो आपका टोटल कितना होगा 400. तो आपके द लिंक कैरीज जो कह रहा है 50,000 आपके पास है जी 50,000 फ्रेम्स पर सेकंड. द फ्रेम ड्यूरेशन इज देयरफॉर 1/50,000 और 20 माइक्रो. ये उसका फ्रेम का ड्यूरेशन है. ठीक है जी. द फ्रेम रेट कितना इस 50,000 फ्रेम रेट पर सेकंड. ईच कैरी कितना 8 बिट्स. द बिट रेट आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 400 किलोबिट्स पर सेकंड. जब उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल 100 मेरे पास आ जाएगा, टोटल 400,000 बिट्स या 400 किलोबिट्स पर सेकंड. द बिट ड्यूरेशन इज 1/400,000
सेकंड या 2.5 माइक्रो सेकंड, तो आप इसको इजीली 2.5 माइक्रो सेकंड्स निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर मेरे पास जब इसको दोबारा इसको देखते हैं क्वेश्चंस को, मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस 4, ये 1 2 3 4 4 कंबाइन करता है यूजिंग जो स्लॉट्स ऑफ 2 बिट्स हैं, जो स्लॉट्स कितने इसकी 2 बिट्स की हैं। तो यहाँ पर उसने कहा शो द आउटपुट ऑफ द 4 आर्बिट्री चैनल, व्हाट इज द फ्रेम रेट, व्हाट इज द फ्रेम ड्यूरेशन, व्हाट इज द बिट रेट, व्हाट इज द बिट ड्यूरेशन। तो ये चारों उसके आंसर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डेटा रेट मैनेजमेंट। वन प्रॉब्लम विद DDM is how to handle disparity in the input rates. So far, we assume that the data rates of all input lines were the same. However, if the data rates are not the same, three strategies or a combination of them can be used. These three strategies: multiplexing, multi-level multiplexing, multiple slots of allocations and pulse stuffing. तो ये तीन आप यूज कर सकते हैं डाटा रेट मैनेजमेंट में। कौन सा? मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन और पल्स स्टफिंग। उसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, आपने ये देखे हैं। आपने कहा जी मेरे पास एक आपके पास 20 किलोबिट्स और ये 40 का, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसको 40 का करना, तो आप चार को कर लेते, दोनों को इन दोनों को इसको दोनों को जमा करके आप कह सकते हो 40 हो गए, ये 20 20 40 हो गया। तो आप कह सकते टोटल कितना का 40 40 40 40, इसको आपके पास हो गया 160 किलोबिट्स पर सेकेंड। तो उसने यहाँ पर कहा हुआ इस टेक्निक यूज व्हेन द डाटा रेट इनपुट लाइन मल्टीपल ऑफ अदर्स, तो ये मल्टीपल ऑफ अदर्स उसको जमा कर लें, तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 40। तो आपने उसको इकट्ठा करने के बाद उसको कह दिया आउटपुट लेवल पे कह दिया 160 किलोबिट्स पर सेकेंड। अब आ जाए मल्टीपल स्लॉट्स एलोकेशंस के अंदर। जब मल्टीपल स्लॉट्स एलोकेशंस के अंदर है तो मेरे पास यहाँ पर आप नजर आओगा, आपके पास आओगा कि ये आपके पास 50 किलोबिट्स है, ठीक है, पर सेकेंड। तो अब ये आपके पास 50 है, तो आपने ये 25 आई मीन ये बिकम्स 25 अब ये किस तरीके से आपने कर रहे हो, बिकॉज आपने ये किया कि ये आपने ले लिया, आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये 50 ले लिया, 50 किलोबिट्स ये आपके पास है, आपके पास इन दोनों को मिलाकर ये 50 और आपने इसको आपने एडजस्ट कर लिया, दैट बिकम्स लेट अस से 46 किलोबिट्स पर सेकंड है। तो आपने जब इसको 46 किया तो मेरे पास उसको पल्स स्टफिंग यूज की। इस एग्जांपल इसमें अगर मैं पल्स स्टफिंग यूज करूं तो इसमें पल्स स्टफिंग यूज हो सकती है। पल्स स्टफिंग करने के बाद मैं इसको अगर मैं 50 किलोबिट्स पर सेकंड पे ले आऊं तो उसको कोई हर्ज नहीं, टोटल मैं कहूंगा तो 150 किलोबिट्स। अगर मैं इसके साथ खेलता हूं इस पोर्शन में तो मेरे पास ये कितना हो गया 25 25 25 25 25, तो टोटल मेरे पास 5 तक है, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 125 किलोबिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टफिंग हुई हुई है। सो दिस पोर्शन येलो पोर्शन पिंक पोर्शन को इसको यहाँ पर स्टफिंग कहते हैं मल्टीपल स्लॉट एलोकेशंस में, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाए पल्स स्टफिंग। अब पल्स स्टफिंग में क्या करते हैं, समटाइम the bit rates of the source are not multiply integer of each other. Therefore, neither of the above two techniques can be applied. One solution is to make the highest input data rate the dominant data rate and then add dummy bits to the input line with the lower rates. This will increase their rates. These techniques को क्या कहते हैं pulse stuffing, bit padding और bit stuffing. The input with the data rate 46 है तो आपने उसको इंक्रीज कर दिया 50 साथ, और यहाँ पर बेसिकली एग्जांपल उसके साथ यहाँ पर दिखाया हुआ है आपके पास ये पल्स स्टफिंग यहाँ पर हुई है। तो आपके पास इसने यहाँ पर डिवाइड किया था, इसके मल्टीपल टाइम स्लॉट्स की एलोकेशन हुई हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। तो बेसिकली हम लोगों ने फ्रेम की सिंक्रोनाइज किया। Synchronization between the multiplexing and demultiplexing is a major issue. If the demultiplexers are not synchronized, a bit belonging to one channel may be received by the wrong channel. For this reason, one or more synchronization bits are usually added to the beginning of each frame. These bits, called framing bits, follow a pattern, frame to frame, that allows the demultiplexers to synchronize with the incoming stream so that it can be separate the time slots accurately. In the most cases, these synchronization information consists of 1 bits per frames alternating between 0 and 1. तो ये बेसिकली दिखाया हुआ है यहाँ पर। अगर मेरे पास गलती से कोई याद है तो केसेस को हम यूजिंग फ्रेम सिंक्रोनाइजिंग से किस तरह हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाए स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, ये आपको उसके साथ करवाऊंगा आपके पास नेक्स्ट टाइम में। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि दैट इज अ स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, जिस तरह हम लोगों ने अभी सिंक्रोनस नहीं किया, आप स्टैटिस्टिकल पे आ जाए, बिकॉज दिस इज अनदर हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में आएगा आपके पास, बिकॉज अब इसमें कहता है कि इन ए सिंक्रोनस टीडीएम each input has a reserved slot in the output frame. This can be inefficient of some input lines have no data to send. In statistical TDM में क्या होता है, slots are dynamically allocated to improve bandwidth efficiency. इसमें आप किसी चीज की बात हो रही है bandwidth की improvement की efficiency की। फिर कहते हैं कि only when an input lines has slots worth of data to send is it given a slot in the output frame. In statistical multiplexing, the number of the slot in each frame is normally less than the number of the input lines. Very important line. कहता है कि in statistical multiplexing, the number of the slots in each frame is normally less than the number of input lines. The multiplexer check each input lines in a round robin fashion. जिसमें check होता है round robin fashion में. It allocates a slot of input lines if the line has data to send. Otherwise, it skips the line and check the next line. अब इस तरीके से हम लोग सोचते हैं स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एड्रेसिंग में एंड output slot in synchronization time division is totally occupied by data. In statistical TDM, a slot needs to carry data as well as the address of the destination. In synchronization TDM में, there is no need for addressing. Synchronization and pre-assigned relationship between the inputs and outputs serve as an address. In statistical multiplexing, there is no fixed relationship between the inputs and outputs. There are no pre-assigned or reserved slots. No synchronization bits. The frames in statistical TDM need not be synchronized, so we do not need synchronization bits. तो आप इसके अंदर आप लोग देखते हैं statistical time division multiplexing में slot size. Since a slot carries both data and an address in statistical time division multiplexing, the ratio of the data size to address size must be reasonable to make transmission efficient. For example, it would be inefficient to send 1 bit per slot as data when the address is 3 bits. Up statistical TDM में block of data is usually many bytes while the address is just a few bytes. इसके अंदर bits के फॉर्मेट में है, राइट, और इसके अंदर bytes के फॉर्मेट में आप स्टैटिस्टिकल में देख रहे हैं। फिर बैंडविड्थ में कहता क्या है आपके पास, इन स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग capacity of the link is normally less than the sum of the capacity of each channel. The designer of statistical time division multiplexing define the capacity of the link based on the statistics of the load of each channel. If on average only X% of the input slot are filled, the capacity of the link reflects this. Of course, during peak time, some slots need to wait. तो अब इसके अंदर दोनों में टाइम डिवीजन ऑफ एफटीएम में ये आपके पास नजर आ रहा होगा, आपके पास दिस इज स्लॉट में आपके पास फ्रेम्स नजर आ रहे होंगे। उसने क्या कहा है, इन टीडीएम यूजर सेंड्स एट हायर रेट एट फ्रैक्शन ऑफ द टाइम। देख रहे हैं, इन एफटीएम यूजर सेंड्स एट लो रेट एट ऑल द टाइम। ये दोनों में फर्क है। फिर एनालॉग ट्रांसमिशन में signals are commonly multiplexed using FTM, in which the carrier bandwidth is divided into sub-channels of the different frequencies width, each carrying a signal at the same time in parallel. The digital transmission signals are commonly multiplexed using TDM, in which the multiple signals are carried over the same channel in the alternating time slots. In some optical fiber networks, multiple signals are carried together as separate wavelengths of light in a multiplex signals using wavelength region multiplexing। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये आखिरी आता है कोड विजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये आखिरी हमारे पास, इसकी भी अगेन डिजिटल फॉर्मेट में है। अब ये कहता है कि a narrow band signal is spread out over a wide frequency band, make it more tolerant of interference, allowing multiple signals from different users to share the same frequencies called the code division multiplexing। तो हमारे पास code division multiplexers के अंदर allows each station to transmit over the entire frequency spectrum all the time. Multiple मेरे पास simultaneous transmission are separated using coding theory। अब इसके अंदर मेरे पास क्या था कि CDMA each bit time is separated into m short intervals called these shapes। टोटली मेरे पास 64 और 128 होती हैं इसमें। Each station is assigned a unique m bit called a chip sequence
minus one plus one in parenthesis to transmit one bit station descend the chip sequence. अगर मैं 0 bit send करना चाहता negative negation of its chip sequence, no other pattern are permitted. मसला अब मेरे पास यहाँ पर आता है. कहते for simplicity consider 8 chips per bit as is example n is equal to 8 minus 1 plus minus plus. It मतलब क्या इसका? It can send a one bit of transmitting the chip sequence and 0 bit is transmitting the negation of the chip. तो मेरे पास इसका जैसे 0 bit negation of आ जाएगा इसके अंदर. It is really signals with this voltage levels that are sent but is sufficient for us to think in terms of the sequence. अब मेरे पास यहाँ पर उसने एक चीज समझाई थी. यहाँ पर उसने कहा था मेरे पास यहाँ पर दो तरह के है. उसे each assigned a unique ambit code called a chip sequence of -1 and +1 to transmit one chip is a sequence. ये chip अगर मैं transmit 1 करूंगा तो आपके पास ये फॉर्मेट में जाएगा chip sequence के अंदर. अगर मैं 0 करूंगा तो वो chip वो again it's a negation of its chips. नेगेशन में होगा तो वो 0 साइन होगा. ये बात याद रखिएगा. तो आपके पास ये फॉर्मेट आपके पास बन रहा होगा. उसके बाद आप कहते हैं क्या अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी सेंड फ्रॉम b bits per second to m chips per second for each station. Bandwidth needed for CDMA is greater by a factor of m. ठीक है जी. Then the bandwidth needed for a station not using CDMA in the modulation and encoding and link techniques. अब उसका फॉर्मूला की तरह आता है. All chip sequences are pairwise orthogonal. The normalization inner product of any two distinct chip sequence S and T written as S dot T is 0. Walls code are used to generate orthogonal chip sequence. Orthogonally आपके पास आते हैं summation का फाइन है I equals to 1 to m. वैल्यू m से डिवाइड हो रहे हैं और S dot T से आप इक्वल टू 0 है. S dot T आपका 0 हो तो आप दोनों के प्रोडक्ट लें तो मेरे पास इक्वल टू 0. तो आपने ये फॉर्मेशन फॉर्म में और अगर आप इसको इन्वर्स करके इसका इसको इन्वर्ट करके आप जो एस कहते हो तो वो मेरे पास -1 की फॉर्म में है. तो आपके पास कहता क्या है कि मेरे पास to recover the bit pattern of the individual station, the receiver must know the station chips sequence in advance. ठीक है जी. Compute the normalization inner product of the receiver chip sequence S and the chip sequence of the station whose bits string is to try and recover C. The normalization inner product is S dot C. ठीक है जी. ये आपके पास ये आपका ए बी सी डी है और ये आपका ए बी सी डी है. आपको ये चारों इसको दिया हुआ है. S1 इक्वल्स टू सी. ठीक है जी. ये आपका S1 इक्वल टू सी, ये सी है. आपके पास बी प्लस सी आपने क्या इन दोनों को जमा करके ये आपका सीक्वेंस बन गया. आपने ये सारे को सीक्वेंस आपने बनाते रहे हो आपस में. आपके पास ये क्या मेरे पास आपको ये है एस नॉट डॉट सी. तो अब ये सीक्वेंस आपके इक्वल टू -1 आ रहा है. तो आपने ये उसको सम अप करके बाद उसको कर रहे हो. ये आपका बड़ा जबरदस्त एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है. ठीक है जी. उसके बाद आपको ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, थैंक यू वेरी मच लिसनिंग मी.